हमारे पास टॉपिक है बेटा, टुडेस टॉपिक इज इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। अगर हम इंपल्सिव फोर्सेस की बात करें, इंपल्सिव फोर्सेस आर द रिलेटेड टू द चेंज इन मोमेंटम. Those forces which can bring the change in momentum for a short period of time, they are called the impulsive force. A large force in a short period of time, or we can say that change in momentum for a short period of time, they are called the impulsive force. Whereas if we talk about the non-impulsive forces, they do not bring any change in momentum. They are constant forces. There is no change in momentum, no change in force. They are constant force for a long duration of time, and there is no change in momentum in them. They are fixed forces. If we talk about the impulsive forces, they, if we say the change in momentum means either increase in force or decrease in force. What is the change in momentum upon time? It is the force. It relate to either increase in force or it relate to either decrease in force. That is the impulsive force. Where in non-impulsive, their forces are constant and they are fixed. And if I talk about the impulsive and non-impulsive forces, so come here. If I keep the nail here, और मैं इसके ऊपर इसको अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, इसको अगर मैं फिक्स करके जितना मर्जी जोर लगाता हूँ, जितना मर्जी जोर लगाता रहूँ, ये अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा. मैं इसको जितना मर्जी प्रेस कर लूँ, क्या ये अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज मैं एक फिक्स फोर्स लगा रहा हूँ, चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगा. माई फोर्स इज फिक्स्ड एंड कॉन्स्टेंट फॉर वट एवर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. Because it is a non-impulsive, it will not bring any change in the momentum. Momentum is related to some velocity. Momentum is mass multiplied by velocity. If velocity is 0, then again momentum is 0. If mass is 0, which is not possible, then again momentum is 0. अगर मैं इसको प्रेस करके जितना मर्जी फोर्स लगाता रहूँ, ये स्टिल है, मोमेंटम चेंज नहीं है, तो ये हमारे पास फोर्स तो है, बट इट इज ए नॉन इम्पल्सिव फोर्स. पॉज कर लीजिए. इफ आई टॉक अबाउट द इम्पल्सिव फोर्स, तो फोर्स तो मैं अभी लगा रहा हूं, लेकिन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फोर्स लग रही है लेकिन जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कभी भी वो कील ठोकते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि इसको दबा के रखें, दे जस्ट स्ट्राइक बैक. लेकिन अगर मैं इसको कोई भी ऐसे पकड़ के दबाता रहे, विल इट इफेक्ट? देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम मींस नॉन इंपल्सिव फोर्स. For example, if I take a second example of a short put, it's a heavy short put, 8 kg short put. So if I hold this short put, I am using some force here. Obviously using a force against the weight because gravitational force is acting on that. But what kind of force is this? Is this impulsive or non-impulsive? Non-impulsive, because there is no change in momentum. It is fixed. It is stationary here and it is fixed. No change in momentum. But what if I drop this? What kind of force is that? Impulsive force. Because the force is same, the force is exerted by this short put, but here is no change in momentum. This fixed, constant for a long period of time, जितनी देर के लिए मैं इसको होल्ड करूँ, that is non-impulsive. अगर मैं ये गिर जाता है, that is called the impulsive force. अब हमारे पास impulsive forces की कौन सी एग्जांपल्स आ जाती है और कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती है? क्रिकेट बैट जो होता है, बॉल को स्ट्राइक करते हैं, वो बैट बॉल के साथ लेके थोड़ी घूमते रहते हैं, बस एक बार स्ट्राइक किया, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगी, दैट इज कॉल्ड द इंपल्सिव फोर्स. बैडमिंटन रैकेट की बात करें तो स्ट्राइक करते हैं, उसका जो शटल होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लार्ज फोर्स, दैट इज इंपल्सिव फोर्स. अगर नॉन इंपल्सिव की बात करें तो नॉन इंपल्सिव फोर्सेज में हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, किसी स्प्रिंग को खींच के रखा हुआ है, नॉन इंपल्सिव. शॉर्ट पुट को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, नॉन इंपल्सिव है. एक कील के ऊपर मैं ऐसे प्रेस करता रह रहा हूँ, नॉन इंपल्सिव. जहाँ पे मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, नो वेलोसिटी इन्वॉल्व, नो चेंज इन मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड द इंपल्सिव. नो चेंज इन फोर्स ऑल्सो, कंटिन्यूअस फोर्स, रिमेंबर दैट, नो चेंज इन फोर्स ऑल्सो, ए फिक्स फोर्स फॉर ए कंप्लीट इंटरवल ऑफ टाइम. और वो हमारे पास कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स. एग्जाम्पल के लिए दिस बॉय इज सिटिंग ऑन अ टेबल, तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. तो क्या ये इंपल्सिव है, नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव, क्योंकि मोमेंटम में चेंज नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स रहती है, जितने मर्जी इंटरवल के लिए चाहे सारा दिन बैठा रहे, दैट इज कॉल्ड द नॉन इंपल्सिव. लेकिन इनके टेबल टूट जाए,
ये बैठा हुआ टेबल टूट गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम है, लेकिन अब वो नॉन इंपल्सिव से इंपल्सिव में है। तो इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव का क्राइटेरिया क्लियर हो गया। वो फोर्स जो फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती है लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द नॉन इंपल्सिव। और वो फोर्स जो एक शॉर्ट इंटरवल के लिए लगती है लेकिन बहुत ज्यादा लगती है, दैट इज कॉल्ड द इंपल्सिव। अब मैं इस पे पूरा दोनों हाथों से जोर लगा रहा हूं, तब भी कील अंदर नहीं जाएगी, लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहा हूं काफी लंबे इंटरवल के लिए। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट इंटरवल के लिए भी लगाता हूं, चाहे उससे कम लगाऊं, इट विल इंपैक्ट क्रिएट, दैट इज कॉल्ड द इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव। देयर डिफरेंस इन नॉन इंपल्सिव एंड नॉन। क्लियर?